Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start Business Studies NCERT Class 12 Chapter number 4, that is Planning. We all know that there are 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So the very first function of management is planning. The very first function of management starts with the planning. We know that all organizations, whether it is a government organization, private organization, small business or big business, each and every organization requires planning, we can say. Yes, each and every businessman has a dream, has a goal, has an objective. It may be increasing the sale, it may be earning high profits, it may be getting success in the business, it may be earning goodwill in the market. So everyone, all businessmen think about future, we can say, and accordingly they also make predictions and they also try to achieve goals or targets or objectives of the organization. So we can say that each and every businessman decides in advance what to do, how to do and when to do, and if they are doing so, then that is known as planning. Thus we can say that planning is thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. In simple words, we can say that planning bridges the gap where the organization is standing and where the organization want to reach. हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसा मेथड है जो बिजनेसमैन को बताता है कि कहाँ पर बिजनेस है और कहाँ वो पहुँचना चाहता है. इसके बीच का जो गैप है, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिजनेसमैन वांट टू इंक्रीज द सेल्स बाय 10%, तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? आज उसकी सेल कम है बट वो चाहता है एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी सेल्स 10% इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए उसको प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी. यस, इट मीन्स उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरी कैसे बिजनेस की 10% सेल्स इंक्रीज हो जाए. सो ऑल दैट बीइंग डन इन द टाइम पीरियड, और जो भी इसके बीच का गैप है where the business is and where the business want to go, then that is known as planning. Okay, I hope you are getting it. Now planning is something which is required at each and every level of management. हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, वेदर इट इज़ टॉप लेवल, वेदर इट इज़ मिडिल लेवल, वेदर इट इज़ लोअर लेवल. ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्स टू डू प्लानिंग. ओके, अगर टॉप मैनेजमेंट है तो वो एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर प्लानिंग करेगा. अगर मिडिल लेवल है तो डिपार्टमेंटल लेवल पर प्लानिंग करेगा. इफ इट इज लोअर लेवल देन डे टू डे प्लानिंग करेगा. ओके, सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज समथिंग विच इज डन एवरीवेयर एंड बाय each and every level of management. Okay, now planning is something which is futuristic. Planning is something about prediction. Planning is something about forecasting. Okay, so in boards as well, if you are getting the definition to write, then you should add these words. It will be impressive. It would be impressive if you'll be using these words, that it is futuristic or forecasting or predictive. Okay, so we can say that planning, it involves setting objectives. Of course, planning तभी होगी जब कोई business का objective होगा और उसी objective के according आगे क्या करना है, आगे के कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या रहेंगे, इस पर बात होगी, वो डेवलप होते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज समथिंग विच इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, एंड वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड, देन हाउ दोज ऑब्जेक्टिव्स विल बी अचीव्ड. Then to achieve those objectives, the method to be followed, the course of action to be done is known as planning. Okay, each and every member in the organization need to work according to the organizational goals. Okay, we know that each and every member in the organization work according to the organizational goals. Now these goals can set the targets. ओके, दीज गोल्स कैन सेट द टारगेट्स कि हमने पहले क्या करना है, कैसे काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल कि एक बिजनेसमैन चाहता है कि मैं
10% सेल्स इंक्रीज करूं और आज मेरी सेल्स बहुत कम है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसका मेजरमेंट करेगा कि आज बिजनेस कहाँ है और कल को बिजनेस कहाँ जाना चाहता है। इट मीन्स बिजनेस क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, टारगेट्स बना रहा है और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान बना रहा है कि कैसे उस ऑब्जेक्टिव को एक्चुअली में अचीव किया जा सके। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लाइन बच्चों फॉर योर केस स्टडी एज वेल। वन मोर थिंग, it is concerned with both ends and means, that is what is to be done and how it is to be done. In your board exams you can get for 1 mark question that planning is concerned with both, MCQ आ जाता है, ends and means। ये एक end भी है और एक जरिया भी है। end है कि planning is the end, we can say कि objective कैसे अचीव करना है, and means भी है कि किस तरह से अचीव करना है। Okay, I hope you are getting it. Now let's move on to the benefits or importance of planning. Importance of planning की बात करते हैं अब हम। The very first importance of planning is planning provides directions. Yes, planning direction provide करती है। planning एडवांस में ही बता देती है कि काम को कैसे करना है। डायरेक्शन इज कि काम को की एक्शन क्या होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने एक प्लानिंग करी है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान करा है। इट मीन्स कि अब इस स्टेप को फॉलो करना है। तो इट मीन्स कि प्लानिंग क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है। ओके, प्लानिंग इंश्योर करती है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेटेड हो, हर किसी को पता हो ऑर्गेनाइजेशन में, एवरीवन शुड नो अबाउट द गोल, एवरीवन शुड बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव, और फिर वही गोल वही ऑब्जेक्टिव एक्ट करता है एज अ गाइड कि काम कैसे करना है, किस डायरेक्शन में काम को करना है। ओके, अगर एम्प्लॉयज़ को अपने गोल्स बहुत अच्छे से पता हैं, ओके, तो वो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपना 100% देंगे। सिमिलरली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स ये भी आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे इफ दे ऑल आर क्लियर दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड बाय whom इट शुड बी डन। अगर ये प्लानिंग नहीं होगी देन नो एम्प्लॉय वुड बी एबल टू वर्क इन डिफरेंट एनवायरमेंट एंड एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑफकोर्स अगर लाइफ में आपको कुछ पता हो कि मेरे साथ ये होने वाला है और आप उसकी प्लानिंग कर लेते हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जो होने वाला है वो नहीं होगा, पर हाँ कुछ हद तक वो कम हो सकता है। सिमिलरली अगर ऑर्गेनाइजेशन भी प्लानिंग कर लेता है तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। ओके, प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे मैनेजर दूर की सोचता है और एंटिसिपेट करता है कि फर्दर फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, और जब वो ये चेंजेस को एंटिसिपेट कर लेता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करता है, उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस को डील करने के लिए प्लानिंग करता है। ओके, और जहाँ पर उसे लगता है कि वो इन चेंजेस को जो होने वाले हैं या कुछ अनसर्टेनिटी होने वाली है बिजनेस में उसे एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है कि वो उन प्रॉब्लम को, उन अनसर्टेनिटी को कुछ हद तक उसके रिस्क को रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज व्हाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। प्लानिंग क्यों जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? बिकॉज प्लानिंग रिड्यूसेज ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग मतलब एक ही काम को बार बार करते रहना, और वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम कर देना। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक्चुअली जब प्लानिंग हो जाती है तो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, each and every department, they all work in coordination because they know the organizational goals, और उन्हें ये भी पता होता है कि हमसे organization चाहता क्या है। So each and every department, each and every division, each and every individual, they try to put on their best efforts, okay, so that they can do their best, so that they can perform their best। और इससे क्या होगा? if they'll be knowing कि what the organization wants from them, so there will be no confusion, there will be no misunderstanding, okay, there will be clarity in thought as well as in action,
दे नो काम को कैसे करना है, दे विल बी डूइंग वर्क स्मूथली, देयर विल बी नो इंटरप्शन. ओके, यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज़, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है या हम कहें जो यूजलेस, जो रिडंडेंट एक्टिविटीज़ है जो बार बार होती रहती हैं, उन्हें मिनिमाइज करा जाएगा, एलिमिनेट करा जाएगा, इनएफिशिएंसीज डिटेक्ट हो जाएंगी एंड टाइमली करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकेंगे. ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. ऑफ कोर्स प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है. प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज़ को, कि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके. दे कैन कम फॉरवर्ड एंड कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन बाय शेयरिंग देयर आइडियाज़. और इससे क्या हो जाएगा, दैट it can be, it will be able, there will be a greater scope of finding out the better ideas, better methods, so that each and every employee can perform a particular job perfectly. Planning जो है वो managers को force करती है to think differently. अगर आपसे कहा जाए कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, आप प्लानिंग करो, तो आप अपने एरिया से बाहर निकलकर सोचने लग जाते हो. सिमिलरली मैनेजर्स they think differently and assume the future conditions. और जब वो assume करते हैं future conditions को, तो उससे managers क्या होते हैं, they become innovative and they become creative as well. Next importance is planning facilitates decision making. Planning help करती है managers को decision लेने में. As we know that planning goals are set in advance, predictions are already made. तो जब एडवांस में ही गोल सेट हो गए हैं, प्रिडिक्शंस भी बना ली गई हैं, तो क्या होगा, इट विल हेल्प द मैनेजर टू मेक फास्ट डिसीजन. ओके, प्लानिंग क्या करती है, फ्यूचरिस्टिक है. ओके, फ्यूचरिस्टिक है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है. ओके, हमें पहले से ही पता है, ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही पता है कि दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और अगर ऐसे में कोई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन आते हैं उसके सामने, मैनेजर के सामने, तो वो उसमें से वो कोर्स ऑफ एक्शन, वो ऑल्टरनेटिव चूज करेगा जो मैच करेगा ऑब्जेक्टिव के साथ, कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग बेस्ट डिसीजन मेकिंग ली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फिर से वही सेल्स इंक्रीज करने की, और ऐसे में 4-5 चॉइसेस बिजनेसमैन के सामने आ जाती हैं, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज करेगा जिससे बिजनेस की सेल्स इंक्रीज हो जाए. इट मीन्स जब पहले से ही पता है गोल क्या है, पहले से ही प्रिडिक्शन ले रखी है, तो बिजनेसमैन फास्ट डिसीजन मेकिंग कर सकता है. नेक्स्ट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेज स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. ऑफ कोर्स प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग एक स्टैंडर्ड बना देती है, एक बेंचमार्क बना देते हैं. स्टैंडर्ड इज मेकिंग बेंचमार्क फॉर कंट्रोलिंग. वी नो दैट प्लानिंग जो है स्टार्ट होती है, प्लानिंग के साथ ही स्टार्ट होते हैं बाकी के 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग क्या करती है, गोल्स सेट करती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट करती है, और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट होते हैं, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड भी सेट हो जाता है. ओके, जैसे ही स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, वैसे ही प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग कंपेयर करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कि एक्चुअली में वर्क चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल फिर से वही सेल्स इंक्रीज करने का अगर टारगेट है, तो मैनेजर विल लुक आफ्टर दैट जो प्लानिंग की गई है, दैट द प्लानिंग इज बीइंग डन इज अकॉर्डिंगली रनिंग अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स. जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग चल रही है, क्या काम हो रहा है. अगर हो रहा है देन वेल एंड गुड. इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग as the organization want, or if it is below standard, then errors to be found. कहाँ पर एरर है, कहाँ पर डिफिशियंसी है, ये फाइंड आउट किया जाएगा, एंड देन करेक्टिव मेजर्स टू बी टेकन. ओके, for example if in an organization it was planned that output for a week will be 100 units, but actual output जो employee produce कर रहा है that is 80 units, it means there is a need for controlling. अब क्या होगा, the controlling manager will take the corrective measures so that the controlling manager can raise the production from 80 units to 100 units. But if what happens, तब क्या होगा, when planned output that is 100 units is not given by the planners, then finding out whether 80 units production is sufficient or not.
तब ये पता करना पड़ेगा कि 80 यूनिट सफिशिएंट है या नहीं है, या 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करना है, और ये काम कौन करेगा? अगेन प्लानिंग। गैप आता है तो देखना है कि क्या 80 यूनिट सफिशिएंट है वीक का प्रोडक्शन, नहीं है तो 100 यूनिट्स ही हमें प्रोड्यूस करने हैं, और अगर 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करने हैं तो वो कैसे इंक्रीज किए जा सकते हैं, और उसको इंक्रीज करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। So we can say that planning is a prerequisite for controlling. कंट्रोलिंग करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है? प्लानिंग। और वी कैन से प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल. These two are important for your again board exams, because in your board exams you can get the question how we can say that planning is a prerequisite for controlling. Then you have to explain this paragraph. And again you can get the question like for 3 marks, how we can say that planning provides the basis of control. Again you have to explain this paragraph in your board exams. I hope you understood. Thank you students.